Hello, everyone. I hope you all are doing very well. So, welcome to the daily news analysis, where we cover the most important current affairs in a simple, concise, and an exam relevant manner. तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले न्यूज आर्टिकल के साथ. So, the first news article talks about AI Impact Summit. So, the first takeaway from this article is कि AI Impact Summit कहाँ पे हो रही है. So the AI Impact Summit 2026 is going to be held in New Delhi from 16th to 20th February. And this is the first time that a global AI summit, a major AI summit is being held in the global south. पहली बार कोई बड़ी AI summit global south में होने जा रही है, वो भी न्यू दिल्ली में. सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए इस आर्टिकल से कि AI इम्पैक्ट समिट है क्या. ठीक है, तो समझते हैं. AI इम्पैक्ट समिट बेसिकली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे कई देशों से, बड़े बड़े देशों से जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, कोरिया जैसे देशों से डेलीगेट्स आते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई, कि हम अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कैसे और एथिकल बना सकते हैं, उसको हम कैसे जो सिटीजन्स की, जो कॉमन मासेस की वेलफेयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. So that is all about AI Impact Summit. It is being held in New Delhi and it is an international conference focused on artificial intelligence, economic governance and societal implications. The next important thing you should know from here is that what is the theme of this summit? Theme of the summit is Sarvajan Hiteya, Sarvajan Sukhaya. That means welfare for all and happiness for all. Yes. तो आपको थीम भी याद रखना है कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए that what was the theme of global AI summit held in New Delhi? So it was Sarvajana Hitaya and Sarvajana Sukhaya. Then next you should also know कि three guiding principles are there for this summit, and these three principles are people, planet and progress. तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया है पीपल. तो जो ये कॉन्फ्रेंस है दैट एम्स एट मेकिंग एआई मोर पीपल सेंट्रिक, कि किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं. तो एआई, आवर फोकस इज दैट वी हैव टू मेक एआई पीपल सेंट्रिक. हमारा ये नहीं होना चाहिए मकसद कि एआई को हम सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एआई को यूज कर रहे हैं. Rather, our focus is to make AI people centric. Okay. Second keyword is planet. कि हम कैसे जो हमारे AI systems हैं, AI टेक्नोलॉजी है, उसको हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल. जो हम चाहते हैं कि जो AI systems है हमारे, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो. Yes, so this is also going to be discussed in your AI Impact Summit, that how can we make our AI systems more environmentally sustainable and how can we reduce their ecological footprint, their carbon footprint. The next term used here is progress. That means we have to use AI for the progress of all humankind. Yes, it should not be कि कुछ few countries ही AI का फायदा उठा रही हैं और कुछ कंट्रीज बहुत पीछे रह गई हैं इस टेक्नोलॉजी में. नो, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. वी वांट दैट it should enable mutually inclusive progress. So that these three keywords are people, planet and progress. और जो थीम है हमारा that is सर्वजन हितया, सर्वजन सुखया. Yes, I hope आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए AI इम्पैक्ट समिट के बारे में कि वो कहाँ होने जा रही है. न्यू दिल्ली में होने जा रही है. वो क्या है? वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे जो डेलीगेट्स आते हैं, दे डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई, रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई दे डिस्कस. The third we discussed कि theme क्या है इस summit का, that is Sarvajana Hitaya and Sarvajana Sukhaya. And then we also studied that there are three guiding principles: people, planet and progress. चलिए, तो अब चलते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो पे. तो देखिए, जो ये AI इम्पैक्ट समिट हमने पढ़ा इसकी पिछली स्लाइड में, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली. ओके. और उसी के साथ साथ उसके साइमल्टेनियसली एक इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो भी is also being held at the same venue, same location. तो ये क्या है? This is held alongside AI Impact Summit and it serves as a practical platform where artificial intelligence innovations are demonstrated. तो आप इसको, इस एक्सपो को एक एग्जीबिशन की तरह समझ सकते हैं. जैसे एक एग्जीबिशन होता है वैसे ही एक्सपो भी हमारा टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है. वहां पे क्या डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, क्या एग्जिबिट किया जा रहा है?
जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं, एआई की डिफरेंट फील्ड्स में क्या एप्लीकेशंस है, उनको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में. So it translates the summit's policy decisions into on-ground technological demonstrations and market-ready solutions. तो जो हम समिट में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट है, उसमें जो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, जो टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे एआई से रिलेटेड, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हम कहाँ देंगे? ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो है. तो आई होप द टू टर्म्स आर क्लियर. समिट क्या है? समिट में हम करेंगे डिस्कशंस. ऑल द ग्लोबल लीडर्स, technocrats, policy makers, they will come together and discuss regarding AI. और जो उसका एप्लीकेशन होगा, जो वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, वो होगा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में. तो आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर. अब देखिए, हम इतना एआई एआई कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो मच. Let's first understand what is artificial intelligence. Okay, let me clear your doubts regarding artificial intelligence. तो अगर मुझे सिंपल भाषा में आपको बताना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, तो ये एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद डिजाइनिंग सच कंप्यूटर्स, सच एल्गोरिदम्स एंड सच मशीन्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स. जब मशीन्स, जब कंप्यूटर्स हमारे ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोचने लग जाएं, सीखने लग जाएं और हमारी तरह ही टास्क परफॉर्म करने लग जाएं, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. यस, मशीन्स को आपको कमांड देने की जरूरत नहीं होती फिर कि आप ये करिए, आप ये करिए. नो, दे कैन थिंक ऑन देयर ओन, दे कैन मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन एंड दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन. दैट इज व्हाट artificial intelligence in simple terms means. So it says that artificial intelligence is a branch of computer science that enables machines to perform tasks that normally require human intelligence. Yes, ऐसे टास्क जिनके लिए हमें आज तक ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत थी, आज वो मशीन्स परफॉर्म कर पा रही हैं. और उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, such as learning, reasoning, problem solving, understanding language, recognizing patterns and making decisions. जब ये सारे काम मशीन्स करने लग जाएं, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो देखिए, आप अपनी लाइफ में इफ यू लुक इनटू योर प्रेजेंट लाइफ, तो एआई के यूजेस हम बहुत जगह कर रहे हैं. यस, जैसे देखिए, आप अपना फोन, यू ओपन योर फोन, जब आपका फोन आपका फेस रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है. यस, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एआई, दैट एआई कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स. वो ऑलरेडी आपके फेस का एक पैटर्न उसकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है और उस पैटर्न को यूज करके वो हर समय आपका फोन अनलॉक करता है. फेस रिकग्निशन. यस, दूसरा आपने देखा होगा जो हमारी एप्स होती हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें जो आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, दे आर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस, जो भी आपने वॉच किया होगा उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं. तो दैट इज अगेन कि दैट एआई इज एबल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. वो आपकी प्रेफरेंसेस समझ जाता है और उस बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस देता है. ओके, सो दिस वाज सेकंड एग्जांपल. तो तीसरा, अगर हम देखें आपका जो जेनरेटिव एआई है, यस, चैट जीपीटी, इट इज सो मच इन द एयर दीस डेज. तो हम जेनरेटिव एआई का यूज करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए. यस, वो हमें जो भी ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज्यादा जो डेंस मटेरियल होता है, डेंस इंफॉर्मेशन को सिंपल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बना के देता है. यस, आपको अगर मान लीजिए स्पेस साइंस का बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना है, तो चैट जीपीटी आपको बहुत आसानी से उसको एक पेज में बना के दे देगा. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स वेयर वी आर यूजिंग एआई दीस डेज. यस, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एआई क्या है, एआई के एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में आज कितने ज्यादा इमेंस हो चुके हैं. यस, अब चलते हैं इसके इस टॉपिक के नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ दैट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एआई. देखिए, हमने ये बात तो कर ली कि एआई के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है. अब देखते हैं कि एआई हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है. यस, तो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट प्रोवाइड्स हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो देखिए, जितने भी आपके रेपिटेटिव टास्क होते हैं, यस, जैसे आपको फैक्ट्री में कुछ असेंबल करना है, असेंबली लाइन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं, उसको हम एआई से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. और इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि एक तो ये जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग्स उस सेम टास्क को परफॉर्म करें, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर. तो जो एआई है, दैट एलिमिनेट्स दैट पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर. यस, फर्स्ट बेनिफिट. सेकंड, इट ऑल्सो, जो ह्यूमन कैपेसिटी है दैट इज लिमिटेड. ह्यूमन कैपेसिटी मिलियंस ऑफ डेटा को एक साथ एनालाइज नहीं कर सकती.
बट एआई कर सकता है. सो दैट इज वेयर जब ह्यूमन कैपेसिटी जिस टास्क में एंड हो जाती है वहां पे एआई कैन फंक्शन बेटर. So that is how AI helps us improve efficiency and productivity. It reduces human error and improves speed of operations. Yes, it can work way faster than what human beings can do. Yes. Second is better decision making. तो जैसे मैंने आपको बात कही that human beings cannot analyze large data sets. ठीक है, उन्हें काफी टाइम लग जाएगा. मान लीजिए हमें कोई बैंक है, मान लीजिए उस बैंक को 10,000 ट्रांजैक्शंस एनालाइज करनी है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एटलीस्ट 1 वीक चाहिए होगा उस काम करने के लिए, जबकि जो एआई है दैट कैन डू इट इन सेकेंड्स. सो दैट इज, और ह्यूमन एरर का चांस भी नहीं होगा. सो एआई enables बेटर डिसीजन मेकिंग. देन इज इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस. यस, तो हम अभी हमने जो डिस्कस की एग्जांपल्स दे ऑल प्रूव दैट एआई इज हेल्पिंग अस इम्प्रूव आवर पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यस, एआई हमारी लाइफ को, डेली लाइफ को बहुत बेटर बना रहे हैं. So AI enables smart governance, digital welfare delivery, and predictive policing, better urban planning and infrastructure management. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखें हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में भी एआई के काफी एप्लीकेशंस हैं आज की डेट में. एआई इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस. यस, डिजीज डायग्नोसिस के लिए एआई को यूज किया जाता है. दूसरा, जो आपकी नई नई मेडिसिन बन रही है, नई नई ड्रग्स की डिस्कवरी हो रही है, उसमें भी एआई को यूज किया जाता है. जो एआई के सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं उनको यूज करके हम नई ड्रग डिस्कवरी करते हैं. यस, तो हेल्थ केयर में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है. दूसरा जो आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में ऑल्सो एआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. यस, हाउ? जैसे मान लीजिए एआई enables यू पर्सनलाइज्ड लर्निंग. मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको किसी पर्टिकुलर वे में कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो एआई आपको उस तरह से समझा देगा. दूसरे स्टूडेंट को दूसरे तरीके से समझना है तो एआई आपको वैसे समझा देगा. तो एआई enables पर्सनलाइज्ड लर्निंग. यस, so this is how in all these areas AI is making our life better. Yes. Ab, there are also some challenges associated with AI. Yes, it is not all, it is not that all that glitters is not gold, right? So AI के साथ काफी serious challenges भी associated हैं. So the first one is job displacement and inequality. तो जैसे हमने बात करी कि जो भी repetitive tasks हैं उनको हम automate कर सकते हैं, उनकी जगह human beings की जगह हम वहाँ पे AI का use कर सकते हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ा challenge ये है कि इतने सारे लोग jobless हो जाएंगे. Yes, millions of people who depend on those tasks will go jobless. And जो ऑटोमेशन है, वो जो आपकी रूटीन जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करके उन जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनको जॉबलेस कर सकता है. यस, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, पहले हमारे कॉल सेंटर्स हुआ करते थे. कॉल सेंटर्स में कौन वर्क करता था? ह्यूमन बींग्स. बट नाउ व्हाट वी हैव एआई सपोर्ट स्टाफ. अब कॉल सेंटर्स की जरूरत नहीं है, कॉल सेंटर्स को रिप्लेस कर दिया एआई सपोर्ट स्टाफ ने. तो जो कॉल सेंटर्स पे लोग जॉब करते थे, दे हैव more or less gone jobless. Yes, so this is first challenge associated with AI. Second is ethical concerns and bias. AI systems can inherit biases from data. तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो जो AI है that learns from data. हम उसे डेटा देते हैं. यस, उस डेटा से वो सीखता है, उस डेटा से वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है. उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फिर वो फ्यूचर में जो आप उससे क्वेश्चंस पूछते हो उनका आंसर देता है. यस, तो अगर मान लीजिए जिस डेटा पे हमने उसे ट्रेन किया है, जो डेटा सेट हमने उसे ट्रेन करने के लिए दिया, अगर उसमें बायसेस हैं, मान लीजिए उसमें बायस है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर, सम पर्टिकुलर जेंडर इज सुपीरियर देन द अदर और सम पर्टिकुलर रेस इज सुपीरियर देन द अदर, तो वो बायस एआई के अंदर भी आ जाएगा. और जो वो अपने फ्यूचर डिसीजंस लेगा उनमें भी वो बायसेस आ जाएंगे. So this is another very serious concern associated with AI, that it can cause ethical concerns and biases. जो हमारे इनहेरेंट बायस होंगे डेटा में, वो एआई की जो फंक्शनिंग है उसमें भी इनहेरेंट हो जाएंगे. यस, आई होप दिस इज क्लियर. देन थर्ड इज privacy and data security risks. AI depends heavily on personal data. तो जैसे हमने YouTube, Netflix का एग्जांपल लिया, उसमें क्या है, AI is so much into your what you're doing everyday tasks. Yes, तो वो आपका पर्सनल डेटा का मिसयूज भी कर सकता है. So that is another challenge. Then is regulatory and accountability gaps. तो जो artificial intelligence है, that is still a very emerging technology. It is at its very nascent stage. तो जो countries हैं, they do not still have laws, they do not still have appropriate regulations कि वो AI को अभी regulate कर पाए. Yes, it is still emerging. इसके ऊपर studies हो रही हैं कि कैसे हम AI को अच्छी तरह से regulate कर सकते हैं. That is another challenge here. And then there is environmental impact. Yes, तो आप सोचेंगे AI से कैसे environmental impact हो सकता है.
So there is a huge carbon footprint associated with AI. देखिए क्या होता है, जो एआई होती है दैट रिक्वायर्स मैसिव कंप्यूटिंग पावर, मतलब कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। उसके लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा कोल बर्न करना पड़ता है, कोल बर्न करना पड़ता है तो उससे एनवायरमेंट को हार्म होती है। यस, तो एआई ऑल्सो हैज अ environmental impact. Yes, I hope these points are clear now कि AI हमारी लाइफ बेटर तो बना रहा है, बट साथ ही साथ उसके साथ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है। So this ends our first topic, that was regarding artificial intelligence. हमने पढ़ा artificial intelligence impact summit के बारे में, फिर हमने पढ़ा AI India Expo के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि artificial intelligence क्या होता है और उसके उसके साथ जुड़ी हुई benefits और challenges क्या हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। Yes. The next news article is regarding India-US trade deal. So if you're following news these days, आप देख रहे होंगे this article, this term, this news is everywhere. Yes. तो अब हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड कि आखिर ये इंडिया यूएस ट्रेड डील है क्या। यस, व्हाई इज इट सो मच इन द एयर दीस डेज। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। तो जो 2025 के जो टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड में क्या हुआ कि जो इंडिया और यूएस का ट्रेड है उसमें थोड़े टेंशन आ गए। यस, आपको पता होगा कि यूएस में प्रोटेक्शन, बढ़ती हुई प्रोटेक्शनिज्म के चलते यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगाया पहले तो। यस, फिर कुछ मंथ्स बाद 25% और पेनल्टी ड्यूटी लगा दी, दैट वाज लिंक्ड टू रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, उसलिए यूएसए ने 25% एडिशनल पेनल्टी ड्यूटी लगा दी, और जो इफेक्टिव टैरिफ हो गया जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जाते हैं यूएस को, उनके ऊपर जो इफेक्टिव टैरिफ हो गया दैट केम टू 50%। यस, सो यू कैन इमेजिन हाउ हाई इज 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उनकी यूएस मार्केट्स में दे बिकेम लेस कॉम्पिटिटिव। यस, उनको लोग कम खरीदने लगे, इतनी हाई ड्यूटीज के बाद दे बिकेम वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव हो गए तो लोगों ने उनको खरीदना कम कर दिया यूएस मार्केट्स में। इससे जो हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स थे उनको दे सफर्ड हेवीली। यस, देन सेकंड, इससे ना केवल इंडियन एक्सपोर्ट्स सफर हुए, जो यूएस के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थे जो इंडियन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, दे आल्सो सफर्ड, क्योंकि जो वो रेगुलरली चीजें कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस सडनली इतने बढ़ गए तो ऑब्वियसली दे विल बी इम्पैक्टेड। यस, तो फिर क्या हुआ, इस इन चलती हुई ट्रेड टेंशंस के चलते अभी रिसेंटली इन 2026 यूएस एंड इंडिया को दे केम टुगेदर फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट, इंटरिम ट्रेड डील। और अब हमें समझते हैं कि इंटरिम एग्रीमेंट क्या होता है। इंटरिम एग्रीमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ टेम्परेरी एग्रीमेंट। तो यूएस एंड इंडिया ने अपनी ये लॉन्ग टर्म ट्रेड टेंशंस को कम करने के लिए एक अग्रीमेंट किया जिसको हम कहते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील। And what type of a deal is it? It is an interim agreement. It is just a temporary deal for now. Yes. अब इसके तहत यूएसए ने क्या डिसाइड किया, तो यूएस ने टैरिफ्स कट कर दिए 50%, जो 50% हो गए थे लास्ट ईयर, दे हैव बीन कट डाउन टू 18% नाउ। यस, अच्छा, तो अब यूएस ने तो टैरिफ कम कर दिया, बट इट डिड नॉट कम फॉर फ्री। यस, यूएस ने कुछ कंडीशंस लगाए। यूएस ने कहा कि वी वांट अ रेसिप्रोकल टैरिफ फ्रेमवर्क, कि अगर यूएस इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ कम कर रहे हैं तो यूएस वांट्स कि इंडिया भी यूएस प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में कुछ टैरिफ रिलैक्सेशंस दे। यस, इट केम एज अ इट केम एज अ क्विड प्रो क्यो। यस, इंडिया को अगर कुछ चीज मिल रही है तो यूएसए ने कहा कि आप भी हमें कुछ दीजिए। यस, सो दिस इज व्हाट द एंटायर ट्रेड डील इज। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने टैरिफ्स कम कर दिए 18% के लिए, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया will reduce or eliminate import duties on industrial goods, selected agricultural products, food and feed inputs, nuts, fruits, wine, spirits, etc. तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन पे इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम जो यूएस से एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं, इंडिया में जो यूएस इंपोर्ट्स आ रहे हैं उन पे हम इन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज कम करते हैं। वी विल डू अ टैरिफ रिडक्शन ऑन दीज गुड्स। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल थिंग कि यूएस ने भी टैरिफ्स कम किए और इंडिया ने भी कुछ आइटम्स पे यूएस प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस दिया और टैरिफ्स कम कर दिए। यस, अब इसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या हैं, यस, व्हाट आर द एक्सपर्ट्स सेइंग, तो वो हमें इसमें समझना है। दिस आर्टिकल वाज मेनली रिगार्डिंग दैट व्हाट आर द एम्बिग्यूटीज इन यूएस इंडिया ट्रेड डील।
देखिए, तो जो इसका की कंसर्न है, जो मेजर कंसर्न है, दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब देखिए आप कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में कितना सेंसिटिव सेक्टर है। यस, अराउंड 45% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यस, उनके लाइवलीहुड्स, उनकी जो रोजी रोटी है वो एग्रीकल्चर से चलती है। यस, अब देखिए अगर हमने देखा कि इंडिया ने कुछ सिलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो यूएस से इंपोर्ट्स आ रहे हैं, यस, उन पे टैरिफ कम कर दिया। अब देखिए आप, टैरिफ कम होगा तो क्या होगा, वो जो यूएस से इंपोर्ट्स आ रहे हैं उनका प्राइस कम होगा इंडियन मार्केट में। प्राइस कम होगा तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट कंपीटिंग विद इंडियन प्रोडक्ट्स। यस, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स विल हैव टू compete with the US products. अब you know US products are of course going to be a little superior. yes, US में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन हमारी इंडिया के फार्म मैकेनाइजेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यूएस में इट्स अराउंड 95%, जबकि इंडिया में इट्स जस्ट 40%। तो आप देखिए अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 95% फार्म मैकेनाइजेशन के लेवल से आ रहा है, कैन इट कम्पीट विद 40% फार्म मैकेनाइजेशन लेवल? नो। जो 95% वाला है वो ज्यादा, ऑफकोर्स वो ज्यादा चीपर होगा एक तो। यस, वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए इसकी जो मेजर कंसर्न है दैट इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट विल लीड टू competition from US imports. Yes, I hope the first point is clear that जो US India trade deal recently हुई है, the major concern surrounding it is that it could expose farmers to price competition from US imports. जो हमारी 45% population है, that will have to face price competition from better superior US imports. जो सेकंड इसके रिगार्डिंग जो कंसर्न है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बट दैट इज इट मे अलाउ एंट्री ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। यस, जो यूएस है दैट इज अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यस, बट जो इंडिया है, इंडिया में अभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पूरी तरह से अलाउड नहीं है। जो अगर हम देखें तो मार्केट में इट्स वेरी रेगुलेटेड। बहुत ज्यादा रेगुलेशंस के बाद ही कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी हम अपने एग्रीकल्चर में, अपनी फील्ड्स में अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए। बट बिकॉज यूएसए में इट इज so widely prevalent, that's why there are concerns that may also, this deal may also allow entry of genetically modified food products to India. Yes, so these are the two concerns related to the US India trade deal. And it may also reduce protection for Indian crops. Yes, so I think these three are clear to you now, that what are the major concerns surrounding the India-US trade deal. Third, let's move to understand what are bio-based chemicals. ठीक है, तो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये टॉपिक है, बायो-बेस्ड केमिकल्स. So let's try and understand this from word breakdown. Yes, bio-based से आप क्या समझते हैं? ऐसी चीज जो दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल फीडस्टॉक्स, जिसकी जो इनपुट्स हैं, जो इनपुट सोर्सेज हैं वो बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड हैं, दैट इज व्हाट बायो-बेस्ड मीन्स. तो बायो-बेस्ड केमिकल्स इज समथिंग, these are industrial chemicals that are produced from biological feedstocks instead of petroleum. तो जब हम chemicals को biological feedstock से produce करते हैं instead of petroleum, we call those chemicals bio based chemicals. तो feedstocks यूज कौन से हो सकते हैं? या तो एग्रीकल्चर बायोमास, शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च, फर्मेंटेशन सब्सटेंसेस. जब हम इन सब को यूज करके अपने केमिकल्स बनाते हैं, इन सबको भी सब्जेक्ट टू आइदर फर्मेंटेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, माइक्रोबियल प्रोसेसेस, जब इन फीडस्टॉक्स पे एक्ट करती हैं तो जो केमिकल्स हमें मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायो बेस्ड केमिकल्स. So it's simple that chemicals which are obtained from biological feedstocks such as agriculture waste, municipal waste, sugarcane, corn, starch, etc. are bio-based chemicals. Okay. सबसे इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल है बायो बेस्ड केमिकल का, दैट इज बायो इथेनॉल. यस, जो कि प्रोड्यूस होता है शुगरकेन, कॉर्न और मोलासेस से, and it is produced through the process of fermentation by microorganisms. Yes, I hope this is clear. Okay, now let's move that कि हम, what is the need of bio-based chemicals in India? Why bio-based chemicals can prove to be suitable for a country like India? So इसका जो फर्स्ट रीजन है दैट इज इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस, राइट, वी नो इट. स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो लार्ज, जिसको हम अगर हम ना यूज करें तो वो बस वेस्ट है, बट अगर हम उसे वेस्ट करें तो अगर हम उसे यूज करें तो दैट कैन टर्न फ्रॉम अ वेस्ट टू वैल्यू. तो इंडिया प्रोड्यूसेस शुगर, स्टार्च, बायोमास इन ह्यूज क्वांटिटीज
and that is suitable for fermentation industries. Second, pharmaceutical expertise. Yes, so India has the world's third largest pharmaceutical industry in the world. तो उस फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज का यूज करके हम अपनी जो एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक है, जो बायो फीड स्टॉक है, उसको विद बेटर एफिशिएंसी हम उसको बायोलॉजिकल केमिकल्स, बायो बेस्ड केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. So India has experience in fermentation and other processes that are needed to produce your bio-based chemicals. Okay. And third is growing manufacturing sector. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा एक्सपैंड हो इंडिया में, यस, तो उसके लिए हम बायो बेस्ड केमिकल्स का यूज कर सकते हैं. स्केलिंग दिस सेक्टर कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेट्रोकेमिकल्स, क्रिएट न्यू मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ऐड वैल्यू टू फार्म आउटपुट्स. यस, तो फार्मर्स के लिए एक, जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसके लिए एक नई डिमांड बनेगी. यस, this can create new markets for agricultural produce. जो आपका agricultural produce है, that won't be only sold in the food markets, but also that will be used for bio-based chemicals. Okay, so scaling bio-based sector can reduce petrochemical imports. Yes, क्योंकि हम petrochemical की जगह bio-based feedstocks use करेंगे. Second, it can create export opportunities. Yes, जो हम अपना bio-based chemicals बनाएंगे उनको फिर हम export भी कर सकते हैं. It will support farmers. It will support farmers because जो farmer का produce है उनके लिए और demand बढ़ेगी, और new markets और उनके uses बढ़ेंगे. And the last is strengthen green manufacturing. Yes, हम जो पेट्रोलियम पे, जो एक फॉसिल फ्यूल है, उस पे डिपेंडेंस कम करके वी विल मूव टुवर्ड्स द बायोलॉजिकल इनपुट्स सच एज द एग्रीकल्चरल वेस्ट. Okay, now there are also some concerns associated with this, with the use of bio-based chemicals. Yes, so let's see them one by one. The first one is competition with petrochemicals. So देखिए, जो पेट्रोल से बने हुए केमिकल्स हैं उनको हम काफी टाइम के, वी आर यूजिंग देम सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? So we are using them since so long. तो इसलिए अभी जो बायो बेस्ड केमिकल्स है, दे आर स्टिल इमर्जिंग. तो जो दोनों की प्राइस पैरिटी है, दैट इज स्टिल नॉट बीन अचीव्ड. जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, दे कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड. उनके लिए हम, उनको बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिक्वायर्ड मैन पावर है, पूरी सप्लाई चेन उनकी अच्छे से बनी हुई है. बट जो बायो बेस्ड केमिकल्स है, दे आर स्टिल न्यू. वी नीड टू एस्टैब्लिश एवरीथिंग फॉर देम. तो इसलिए जो बायो बेस्ड केमिकल्स हैं, दे आर स्टिल अ लिटिल एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पेट्रोकेमिकल्स. So that is what this says, that bio-based products must compete with cheaper fossil fuel-based alternatives. तो वो जो price parity है दोनों की अभी नहीं आई है. Yes, जो bio-based chemicals हैं, they are still on a expensive side as compared to petrochemicals. The second challenge is scaling up challenges. तो जो initial capital cost है for installing your bio-based chemical manufacturing plants, that is comparatively higher. Yes, so this creates difficulty in scaling fermentation supply chain and complexity. Third one is feedstock reliability. So bio-based chemicals बनाने के लिए we need stable biomass supply and logistics infrastructure. Stable biomass supply का मतलब है that it should be continuous. Yes, it should be persistent. ऐसा ना हो कि आज हमारे पास बायोमास आ गया, फिर कल, फिर नेक्स्ट 10 days के बाद है. It has to be stable. Then the fourth one is market adoption. So industries hesitate to switch because existing petrochemical supply chains are mature and switching costs are high. Obviously, जो अभी आपकी existing industries हैं, they're comfortable with using petrochemicals. अगर उनको कुछ फायदा नहीं दिखेगा, अपना costs already high है, then why would they switch to bio-based chemicals? Yes, तो अभी वो hesitant है in switching towards the bio-based chemicals. And the last point is financing barriers. तो क्योंकि अभी जो बायो बेस्ड केमिकल्स हैं उनकी डिमांड इतनी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, यस, दे आर स्टिल न्यू इन द मार्केट. दैट्स व्हाई जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, दे आर आल्सो कॉशियस ड्यू टू अनसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद बायो बेस्ड केमिकल्स. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. तो अगर हमें चैलेंजेस समझ आ गए, नाउ वी नीड सजेस्टेड सॉल्यूशंस कि हम क्या कर सकते हैं टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. यस, सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी कि प्राइस पैरिटी नहीं है. प्राइस पैरिटी नहीं है दोनों फ्यूल्स में. तो प्राइस पैरिटी हम कैसे ला सकते हैं? उसके लिए पहला स्टेप दैट यू कैन टेक इज कार्बन प्राइसिंग और ग्रीन टैक्सेस. यस, जो आपके पेट्रोकेमिकल्स हैं, बिकॉज दे आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, उसके लिए हम अपना फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स यूज करते हैं, उसके ऊपर हम ग्रीन टैक्स लगा सकते हैं. यस, internalize environmental costs of petrochemicals to improve price parity. Second is production incentives.
viability gap funding, tax credits and PLI type schemes for bio manufacturing. तो जो आपके पेट्रोकेमिकल्स हैं उन पे टैक्स लगाए, क्योंकि वो आपकी दैट इज नॉट अलाइन विद ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर इसलिए आप ग्रीन टैक्स लगाइए। और जो आपके बायो बेस्ड केमिकल्स हैं उनके लिए आप टैक्स क्रेडिट्स दें, यस उसके लिए आप टैक्स सब्सिडीज लें दे, ताकि दोनों के बीच में प्राइस पैरिटी एस्टैब्लिश हो सके। यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, co-locate feedstock suppliers, biorefineries and downstream industries in a, ताकि इनका एक हब बन जाए। यस, सप्लाई चेन में दिक्कत ना आए। अगर सारी चीजें एक ही जगह होंगी, जैसे फीडस्टॉक सप्लायर्स, बायोरिफाइनरीज एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, सब if they will be located together in close vicinity, then जो infrastructure है that will function properly and smoothly. The next point is diversified feedstock base. अब हमने बात करी थी that we need a stable supply. Yes, जो feedstock है वो हमें consistent और persistent रूप में मिलता रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि फीडस्टॉक के बेस को हम डाइवर्सिफाई कर दें। एग्रीकल्चर रेजिड्यू के साथ साथ हम म्यूनिसिपल वेस्ट भी यूज करें, एल्गी भी यूज करें, और जो और लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास है वो भी यूज करें। तो किसी एक फीडस्टॉक पे डिपेंड होने के बजाय वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर फीडस्टॉक बेस, ताकि हम एक स्टेबल फीडस्टॉक सप्लाई इंश्योर कर सकें। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज एंड प्री प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारा फीड स्टॉक का स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी नीड टू बिल्ड स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्लेंडिंग मैंडेट्स। तो मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए हमने ये पढ़ा चैलेंजेस में कि अभी तक मार्केट में डिमांड नहीं है। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अपने जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनके साथ कंफर्टेबल हैं। दैट्स व्हाई दे आर अ लिटिल हेजिटेंट टू स्विच टुवर्ड्स बायो बेस्ड केमिकल्स। तो उस हेजिटेशन को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट ब्लेंडिंग मैंडेट्स। जैसे आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट था, यस, दैट वी हैड टू डू 20% blending by 2025. So similarly we can do for bio based chemicals also. So blending mandates can be in the form of ethanol blending, bioplastic quotas, green chemical substitution targets, etc., etc. So I hope the challenges associated with bio-based chemicals and their suggested solutions are now clear to you. Yes, if a question comes in your mains, I hope you will be able to attempt that on the basis of these points. So that was all for today's daily news analysis. You please revise whatever we studied today in today's class, and we will meet again tomorrow with tomorrow's current affairs. Thank you so much.